بہت پرانے زمانے کی بات ہے، پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جسے لوگ نور نگر کہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام فرید تھا۔ فرید سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا، پھر شام کو انہیں بازار میں فروخت کر مشکل سے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتا۔ اس کے پاس نہ زمین تھی، نہ مال، نہ کوئی بڑا سہارا، بس ایک چھوٹی سی جھونپڑی اور ایک وفادار کتا جس کا نام شیرو تھا۔ شیرو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، جنگل جاتا، بازار جاتا، یہاں تک کہ رات کو بھی دروازے کے پاس پہرا دیتا۔ مگر فرید کی بیوی سائمہ اس غربت سے سخت تنگ آ گئی تھی۔ وہ روز اسے تانے دیتی، تمہارے نصیب میں شاید ہمیشہ لکڑیاں ہی اٹھانا لکھا ہے، باقی لوگ اپنے گھروں کو محل بنا رہے ہیں اور ایک تم ہو جو آج تک کچھ نہ کر سکے۔ فرید ہمیشہ خاموش رہتا اور صرف اتنا کہتا، صبر کرو سائمہ، اوپر والا دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ مگر سائمہ کو اب یہ باتیں کھوکھلی لگنے لگی تھی۔ ایک دن فرید پورا دن بارش میں بھیگتے ہوئے جنگل میں محنت کرتا رہا مگر شام تک صرف چند سکے ہی کما سکا۔ جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو سائمہ نے سکے دیکھتے ہی غصے میں برتن زمین پر دے مارے اور چیخ کر بولی، بس یہی لائے ہو؟ آخر کب تک میں یہ غربت برداشت کرتی رہوں؟ فرید نے نرمی سے کہا، آج لکڑیاں کم فروخت ہوئیں۔ مگر سائمہ نے دروازہ کھول کر کہا، تو پھر اس گھر سے نکل جاؤ، میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر فرید چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا مگر اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے خاموشی سے اپنا پرانا کمبل اٹھایا، تھوڑا سا سوکھا کھانا کپڑے میں باندھا اور باہر نکل آیا۔ شیرو فوری اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ سرد رات میں تیز فضا چل رہی تھی اور گاؤں کے لوگ اپنے دروازوں سے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرید نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ کافی وقت تک سنسان راستوں پر چلتا رہا، یہاں تک کہ اسے گاؤں سے دور ایک پرانا ویران مکان نظر آیا۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں اور اندر ہر طرف گرد اور جالے تھے۔ فرید نے سوچا کہ آج رات یہی گزار لیتا ہوں۔ اس نے کچھ لکڑیاں جلا کر آگ روشن کی، آدھی روٹی شیرو کو دی اور آدھی خود کھائی، پھر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ رات کافی گزر گئی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک شیرو زور زور سے بھونکنے لگا اور ایک کونے میں پنجے مارنے لگا۔ پہلے فرید نے دھیان نہ دیا مگر پھر اسے زمین کے نیچے سے کسی سخت چیز کی آواز سنائی دی۔ وہ فوری اٹھا، ایک زنگ آلود سریا اٹھایا اور مٹی کھودنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق باہر نکلا جس پر بھاری لوہے کا تالا لگا تھا۔ فرید کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پتھر اٹھایا اور تالا توڑ دیا۔ جیسے ہی تالا ٹوٹا اس کی آنکھیں حیرت سے بھر گئیں۔ صندوق کے اندر سونے کے سکے، چمکتے زیورات اور قیمتی پتھر بھرے پڑے تھے۔ فرید حیرت سے وہیں بیٹھ گیا اور شیرو اس کے قریب کھڑا تھا، مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہی خزانہ اب اس کی زندگی بدلنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک ایسے خطرناک کھیل میں دھکیلنے والا ہے جہاں ہر شخص اس کا دشمن بن سکتا تھا۔ پوری رات فرید کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار صندوق کھول کر سونے کے سکوں کو دیکھتا اور پھر گھبرا کر دوبارہ بند کر دیتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا اور سب کچھ چھین لے گا۔ آخر فجر کے وقت اس نے سوچا کہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اس نے چند سکے الگ کیے اور باقی خزانہ دوبارہ اسی زمین میں دبا دیا جہاں سے نکالا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ شیرو کو ساتھ لے کر قریبی بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ بازار پہنچ کر اس نے پہلے کبھی اتنی احتیاط سے خریداری نہیں کی تھی۔ اس نے کچھ اچھے کپڑے، اناج، ایک مضبوط خچر اور ضروری سامان خریدا تاکہ لوگوں کو لگے شاید قسمت سے کوئی اچھا سودا ہاتھ لگ گیا ہے۔ مگر بازار کے کچھ لوگ حیران تھے۔ ایک دکاندار نے مذاق کرتے ہوئے کہا، او فرید، لگتا ہے جنگل میں خزانہ مل گیا ہے۔ یہ سن کر فرید کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے مگر اس نے فوری ہنس کر بات ٹال دی۔ شام تک وہ دوبارہ اسی ویران مکان میں واپس آ گیا۔ اگلے کئی دن تک فرید روز تھوڑا تھوڑا سونا فروخت کرتا رہا اور دھیرے دھیرے اس کی زندگی بدلنے لگی۔ کچھ ہی ہفتوں میں اس نے بازار میں لکڑی اور اناج کی ایک چھوٹی سی دکان لگا لی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک غریب لکڑہارا اتنی جلدی کیسے سنبھل گیا۔ مگر فرید اب پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، صرف شیرو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔
वक्त गुजरता गया और उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर होने लगी। इसकी वजह यह थी कि वो कभी नापतोल में धोखा नहीं देता था। गरीब आदमी आता तो उधार भी दे देता। लोग उसकी तारीफें करने लगे। लेकिन जहां तारीफ बढ़ती है वहां हसद भी जन्म लेता है। बाजार में एक लालची सौदागर रहता था जिसका नाम सिकंदर था। वो काफी अरसे से फरीद पर नजर रखे हुए था। एक रात इसने अपने आदमियों से कहा, कोई राज जरूर है। एक लकड़हारा चंद हफ्तों में अमीर नहीं बन सकता। इसका पीछा करो, मुझे हर हाल में सच जानना है। अगले दिन सिकंदर के 2 आदमी चुपके से फरीद के पीछे लग गए। फरीद जब रात को अपनी वीरान हवेली की तरफ आया तो उन्हें शक हो गया कि राज वहीं कहीं दफन है। उधर फरीद को भी महसूस होने लगा था कि कुछ लोग इस पर नजर रख रहे हैं। इसीलिए इसने रात को सोने से पहले दरवाजे मजबूती से बंद किए और शेरू को अपने करीब बिठा लिया। आधी रात गुजरी ही थी कि अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। फरीद घबरा कर उठ बैठा। बाहर किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। फिर खिड़की के करीब एक साया नजर आया। अगले ही लम्हे किसी ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। फरीद का दिल तेजी से धड़कने लगा और शेरू गुस्से से दरवाजे की तरफ लपक रहा था। बाहर अंधेरे में खड़े लोग धीमी आवाज में एक दूसरे से कह रहे थे, खजाना यहीं कहीं है, आज हर हाल में ढूंढना होगा। और यह सुनकर फरीद को पहली बार एहसास हुआ कि अगर इसने जल्द कोई कदम ना लिया तो यह खजाना इसकी जान भी ले सकता है। रात की खामोशी में दरवाजे पर जोर जोर से धक्के पड़ने लगे। फरीद ने फौरी जलती हुई लकड़ी हाथ में पकड़ी और शेरू गुस्से से भौंकते हुए दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। अगले ही लम्हे दरवाजा टूटकर अंदर गिरा और 3 निकाबपोश आदमी कमरे में दाखिल हो गए। एक के हाथ में खंजर था, दूसरे के पास मोटी लाठी, जबकि तीसरा सीधा कमरे के कोनों को देखने लगा जैसे इसे यकीन हो कि खजाना यहीं दफन है। खजाना कहाँ है? एक आदमी गुस्से से चीखा। फरीद खामोश खड़ा रहा मगर उसके ऊपर खौफ साफ नजर आ रहा था। इतने में एक आदमी इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन शेरू बिजली की तरह इस पर झपटा और उसके बाजू में दांत गाड़ दिए। वो आदमी दर्द से चीख उठा। बाकी दोनों गुस्से में शेरू पर हमला करने दौड़े मगर फरीद ने जलती लकड़ी पूरी ताकत से एक शख्स के कंधे पर दे मारी। कमरे में शोर मच गया। हमला आवरों को अंदाजा नहीं था कि एक गरीब लकड़हारा इतनी मुजाहमत करेगा। इसी अफरातफरी में एक निकाब नीचे गिरा और फरीद हैरत से चीख उठा, सिकंदर! दरअसल पूरे हमले के पीछे वही लालची सौदागर था। सिकंदर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हें खजाना मिला है। बेहतर है खामोशी से दे दो वरना जिंदा नहीं बचोगे। फरीद ने सख्त लहजे में जवाब दिया, यह रिस्क ऊपर वाले ने दिया है, तुम जैसे लालची लोगों के लिए नहीं। यह सुनकर सिकंदर और गुस्से में आ गया। वो खंजर लेकर फरीद की तरफ लपका मगर शेरू दोबारा इसके सामने आ गया। अगले ही लम्हे सिकंदर ने गुस्से में खंजर शेरू की तरफ फेंक दिया। खंजर शेरू के कंधे में लगा और वो दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। शेरू! फरीद की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। इस लम्हे इसके अंदर जैसे आग भड़क उठी। इसने पूरी ताकत से लकड़ी सिकंदर के सर पर मारी। सिकंदर लड़खड़ा गया और बाकी आदमी खौफजदा होकर इसे पकड़ते हुए बाहर भाग गए। जाते जाते सिकंदर धमकी दे गया, यह खत्म नहीं हुआ फरीद, अगली बार तुम नहीं बचोगे। चंद लम्हों बाद हर तरफ खामोशी छा गई। फरीद फौरी शेरू के पास बैठ गया। इसके हाथ खून से भर गए थे। शेरू मुश्किल से सांस ले रहा था मगर फिर भी अपनी दम हिलाने की कोशिश कर रहा था, जैसे अपने मालिक को तसल्ली दे रहा हो। फरीद की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने फौरी कपड़ा फाड़कर जख्म बांधा और पूरी रात इसके पास बैठा रहा। सुबह होते ही वो शेरू को उठाकर हकीम के पास ले गया। हकीम ने जख्म देखते ही संजीदा लहजे में कहा, जख्म बहुत गहरा है, अगले 2 दिन बहुत अहम है, अगर ये बच गया तो मौजिज़ा होगा। ये सुनकर फरीद के कदमों तले जमीन निकल गई। पहली बार इसे एहसास हुआ कि खजाने से ज्यादा कीमती चीज इसकी जिंदगी में हमेशा शेरू ही था। अगले 2 दिन फरीद के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। वो दिन रात शेरू के पास बैठा रहता, इसे पानी पिलाता, जख्म साफ करता और हर लम्हा दुआ मांगता रहता। बाजार की दुकान भी कई दिन बंद रही। गांव के लोग मुख्तलिफ बातें करने लगे। कोई कहता फरीद के पास वाकई खजाना है, तो कोई कहता
इसी खजाने की वजह से इस पर हमला हुआ है, मगर फरीद को अब उन बातों की परवाह नहीं थी। इसे सिर्फ शेरू की फिक्र थी। तीसरे दिन सुबह अचानक शेरू ने धीरे से आंखें खोली और कमजोर सी आवाज निकाली। फरीद खुशी से रोने लगा। इसने फौरी हकीम को बुलाया। हकीम ने जख्म देखकर हैरत से कहा, यह वाकई मौजिज़ा है। इतना वफादार जानवर मैंने कम देखा है। इस दिन पहली बार फरीद ने सुकून का सांस लिया। लेकिन इसी शाम एक नई मुसीबत इसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। जब वो दुकान बंद करके वापस अपने वीरान मकान की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इसे अपनी साबिका बीवी साइमा दिखाई दी। इसकी आंखों में अजीब सी शर्मिंदगी थी। वो धीरे से बोली, फरीद, मुझे तुमसे बात करनी है। फरीद चंद लम्हे खामोश रहा। इसे फौरी वो रात याद आ गई जब इसे घर से निकाला गया था। साइमा ने रोते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे लगा था दौलत ही सब कुछ होती है, मगर मैंने गलत इंसान खो दिया। फरीद ने ठंडे लहजे में कहा, वक्त गुजर गया है साइमा। मगर साइमा ने कहा, मुझे तुम्हारे माल से मतलब नहीं, मैं बस मुआफी मांगने आई हूं। फरीद कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। फरीद हैरान हो गया। शेरू पहले कभी साइमा पर इस तरह नहीं भौंका था। शेरू मुसलसल गुस्से से एक ही तरफ देख रहा था। फरीद ने नजर उठाई तो दूर अंधेरे में किसी आदमी का साया खड़ा था जो फौरी दीवार के पीछे गायब हो गया। फरीद का दिल धड़क उठा। इसे फौरी एहसास हो गया कि सिकंदर अब भी इसका पीछा कर रहा है। इस रात फरीद ने पहली बार सोचा कि शायद अब यह जगह छोड़ना ही पड़ेगी। अगर दुश्मनों को खजाने का राज मिल गया तो न सिर्फ वो और शेरू दोबारा खतरे में पड़ जाएंगे, मगर इसी दौरान इसे एक और बात ने बेकरार कर दिया। जब वो रात को सोने लगा तो उसे अचानक याद आया कि इसने कई दिन से जमीन में दफन संदूक को देखा ही नहीं। और अगले ही लम्हे इसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई कि कहीं सिकंदर के आदमी इस तक पहुंच तो नहीं गए। आधी रात के वक्त फरीद अचानक बिस्तर से उठ बैठा। इसके दिल में बेकरारी बढ़ती जा रही थी। इसने फौरी लालटेन उठाई और शेरू को साथ लेकर इस कमरे के कोने की तरफ बढ़ा जहां खजाना दफन था। इसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही इसने मिट्टी हटाना शुरू की, इसका सांस रुक गया। जमीन पहले ही खुदी हुई थी। संदूक अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। नहीं, फरीद की जुबान से बेइख्तियार निकला। वो पागलों की तरह पूरा कमरा खोदने लगा, मगर खजाना गायब हो गया था। शेरू भी मुसलसल भौंक रहा था और जमीन सूंघते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। फरीद फौरी इसके पीछे भागा। बाहर मिट्टी में घोड़ों के ताजा निशान मौजूद थे। फरीद समझ गया कि सिकंदर अपने आदमियों के साथ आ गया है। इसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। ये सिर्फ दौलत जाने की वजह से नहीं थी। ये इसकी मेहनत, इसकी उम्मीद और उसकी नई जिंदगी छीनने की कोशिश थी। सुबह होने का इंतजार किए बगैर वो शेरू को साथ लेकर उन निशानात के पीछे चल पड़ा। कई मील सफर के बाद वो एक सुनसान पहाड़ी इलाके तक पहुंच गए जहां दूर एक पुराना गोदाम नजर आ रहा था। गोदाम के बाहर दो आदमी पहरा दे रहे थे। फरीद एक चट्टान के पीछे खड़ा हो गया। इसी दौरान इसे अंदर से सिकंदर की आवाज सुनाई दी, सुबह होते ही हम ये खजाना शहर ले जाएंगे, फिर कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। ये सुनकर फरीद की मुट्ठियां बेनिच गईं। वो फौरी अंदर जाना चाहता था, मगर आदमियों की तादाद ज्यादा थी। अचानक शेरू आहिस्ता से गर्राने लगा, जैसे इसे कोई रास्ता सूझ गया हो। वो खामोशी से गोदाम के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। फरीद भी इसके पीछे गया तो देखा दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ था। दोनों आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गए। गोदाम के बीचों बीच वही संदूक रखा था। फरीद की आंखों में चमक आ गई, मगर अगले ही लम्हे एक आवाज गूंजी, मैं जानता था तुम वापस जरूर आओगे। फरीद हैरान होकर मुड़ा। सिकंदर अंधेरे से बाहर आया। इसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट। इसके आदमी भी चारों तरफ से निकल आए। सिकंदर हंसते हुए बोला, एक गरीब लकड़हारा इतना खजाना संभालने का ख्वाब भी कैसे देख सकता है। फरीद खामोश खड़ा रहा, मगर शेरू गुस्से से इसके सामने आकर खड़ा हो गया। सिकंदर ने बंदूक सीधी फरीद की तरफ तान दी और सर्द लहजे में बोला, आज आ तो ये खजाना मेरा होगा। आ तुम दोनों की कब्रें यही बनेगी। गोदाम के अंदर खामोशी छा गई। सिकंदर की बंदूक सीधी फरीद के सीने की तरफ तनी हुई थी और उसके आदमी चारों तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे।
मगर फरीद के चेहरे पर खौफ के बजाय अजीब सा सुकून था। इसने आहिस्ता से शेरू के सर पर हाथ मारा और कहा, जिस रिस्क के लिए इंसान अपनी इंसानियत खो दे वो रिस्क कभी बरकत नहीं देता। सिकंदर गुस्से से चीखा, बहुत हो गई नसीहत, आखिरी बार कहता हूं खजाना छोड़ दो। मगर अगले ही लम्हे शेरू बिजली की तरह सिकंदर पर झपटा। बंदूक चलने की आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी। हर तरफ भगदड़ मच गई। सिकंदर जमीन पर गिर पड़ा और बंदूक दूर जा गिरी। फरीद फौरी आगे बढ़ा और एक आदमी को धक्का देकर संदूक अपनी तरफ खींच लिया। इसी दौरान गोदाम के बाहर घोड़ों की आवाजें सुनाई दी। दरअसल फरीद ने आते वक्त रास्ते में एक चरवाहे को सब कुछ बता दिया था और उसने गांव वालों को खबर पहुंचा दी थी। अगले ही लम्हे दरवाजे से कई लोग अंदर दाखिल हो गए। उनके साथ गांव का नंबरदार भी था। सिकंदर भागने की कोशिश करने लगा मगर लोगों ने इसे पकड़ लिया। नंबरदार ने गुस्से से कहा, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया सिकंदर। सिकंदर खामोश खड़ा रहा, इसका सर नीचे था। मगर इसी लम्हे फरीद की नजर शेरू पर पड़ी और उसका रंग उड़ गया। शेरू जमीन पर पड़ा था और उसके जिस्म से खून बह रहा था। फरीद फौरी इसके पास होकर बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शेरू उठो मेरे दोस्त। शेरू ने कमजोर सी आंखें खोली, दम हिलाने की कोशिश की और आहिस्ता से फरीद के हाथ पर अपना सर रख दिया। पूरे गोदाम में खामोशी छा गई। गांव के लोग भी जज्बाती हो गए। वो सब जानते थे कि इस कुत्ते ने अपने मालिक के लिए जान दांव पर लगा दी थी। कुछ लम्हों बाद शेरू ने एक लंबी सांस ली और हमेशा के लिए खामोश हो गया। फरीद वहीं बैठा रोता रहा। इस दिन इसे एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सोना नहीं बल्कि वफादारी होती है। बाद में सिकंदर को गांव से निकाल दिया गया और फरीद ने वो खजाना गरीबों, मुसाफिरों और यतीमों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसने एक नई पक्की हवेली भी बनाई, मगर हवेली के दरवाजे के सामने इसने शेरू की एक छोटी कब्र बनवाई जहां वो हर शाम बैठा करता था। लोग दूसरे शहरों से फरीद की कहानी सुनने आते और वो हमेशा एक ही बात कहता, असल दौलत सोना, माल, खजाना नहीं होते। असल दौलत तो वफादारी, मोहब्बत और वो रिश्ते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ निभाते हैं। लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सच्चाई और अच्छाई आखिर में हमेशा इज्जत पाती है। और यही बात नूर नगर के लोगों ने हमेशा याद रखी। एक गरीब लकड़हारे और उसके वफादार कुत्ते की कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रही थी, वो लोगों के लिए एक सबक बन गई थी।